कैसे हैं आप सब? व्हाट्स अप गाइस? आपकी सीमा मैम वापस आ चुकी है एक और प्रीमियर सेशन के साथ. Okay, so today we will do soil chapter. So are you guys ready for this? Are you guys ready? Okay, I am starting the session with my introduction, guys. My name is Seema Priya. I have done my master's in physics. I'm having 4 years of teaching experience. I taught around 4,000 students from class 6 to 10th in CBSE school. I have done my B.Ed and also qualified CTET. So, guys, if we talk about Telegram, so here you are getting live updates, all the notes of all the sessions, guys, and जितने भी events होने वाले हैं सबकी information आपको Telegram से मिलती है. So definitely you should join this. If we talk about the free special classes, guys, यहाँ पे आप लोगों को फ्री स्पेशल क्लासेस में काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं बिकॉज टॉप एजुकेटर्स आर देयर टू टेक योर सेशंस हियर. ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग आपको जल्दी से इंस्टॉल कीजिए और ये फ्री स्पेशल क्लासेस भी आपको लेनी है. Free test series are also there, guys. This is also very helpful for your final exams as well as your preparation also. अगर आप prepare कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, लाइक अभी कमिंग मंथ्स में आप लोगों का न्यू सेशन स्टार्ट होगा तो फिर आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे, सो उन सब के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है ये. ठीक है. Now, guys, if we talk about the plus subscription, so what are the benefits of plus subscription? So India's best educator are there. Interactive live classes, live tests and quizzes, structured courses and PDF files are there for all of you. If we talk about the iconic subscription, guys, whatever you are getting in plus subscription, it is included here. And other than that, personal mentor and live doubt solution are also there. Now, guys, if we talk about the plus subscription, so for respective month you have to pay accordingly. You can see काफी ज्यादा beneficial है और plus काफी ज्यादा reasonable भी. If you go for home tuition या फिर अगर आप जाते हो कोचिंग के लिए, so definitely इतने benefits आपको नहीं मिलते. If we talk about iconic subscription for respective month, you have to pay this much. Now, guys, this is your Telegram channel. जल्दी से जाके आपको Telegram group ज्वाइन करना है जितने भी अनअकैडमी के, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे. प्रैक्टिस सेशंस भी है यहाँ पे. इन सेक्शंस में आप लोगों को साइंस और मैथ्स की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी. ठीक है. If we talk about okay, so don't forget to use my code. My code is SWEMA10. You get 10% extra discount also. So please like, share and subscribe. Don't forget to do this. Okay, guys, are you guys ready for the session? आज क्या आप ready हैं? Shall I start now? क्या मैं start कर सकती हूँ? Okay, I am going to start the session, guys. Okay, I am going to start. So look at here. If we talk about the soil, guys, what do you mean by soil? Soil is one of the most important natural resource, guys. सबसे ज्यादा natural resource जो होता है that is soil. It is uppermost layer of the earth crust. Earth crust का सबसे ऊपर वाली जो layer होती है that is your soil, which is blackish brown in color. जो कि blackish brown color का होता है. Reason इसके पीछे का ये है blackish brown का कि उसमें humus present होता है. Humus dark color का substance होता है, सो वो प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उसका कलर ब्लैकिश ब्राउन है. अगर मैं मेजर फंक्शन की बात करूं सॉइल का, इट सपोर्ट्स द प्लांट. प्लांट को सपोर्ट देता है, प्रोवाइड करता है बाय होल्डिंग द रूट्स. रूट्स को होल्ड करके फर्मली एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट. और उसके साथ साथ जो भी वाटर न्यूट्रिएंट्स हम डालते हैं सॉइल के अंदर, वो सारा न्यूट्रिएंट जो है वो पूरा प्लांट जो है वो सॉइल से ही लेता है. इट एक्ट एज अ नेचुरल हैबिटेट. ये इसके लिए नेचुरल हैबिटेट है. किसके लिए नेचुरल हैबिटेट है? हैबिटेट क्या है गाइस? हैबिटेट का मतलब होता है जो जगह, जो प्लेस जिसपे कोई भी रहता है, जो रहने की जगह होती है, दैट इज योर हैबिटेट. आप जहां रहते हैं वो आपका हैबिटेट है. जहां मैं रहती हूँ वो मेरा हैबिटेट है. ठीक है. सो सिमिलरली अर्थवर्म, फंगी, बैक्टीरिया, एंड्स, इन सब की बात की जाए, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो इन सब का ये हैबिटेट होता है. वो यहीं पे रहते हैं, सॉइल के अंदर ही वो रहते हैं. सॉइल कंटेन्स एयर, वाटर एंड काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, गाइस. सो याद रखना है आपको, सॉइल बहुत सारी चीजें कंटेन करता है. आपको लग रहा है सॉइल दिखने में कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बट सॉइल के अंदर काफी कुछ होता है. सॉइल के अंदर एयर होता है, वाटर होता है, काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक फंगी, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, लाइक एंड बिटर्स, अर्थवर्म, रोडेंट्स,
मोल्स, प्लांट रूट्स, ये सब हो पाए जाते हैं वहां पे। तो काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि काफी ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का घर है वो। सम ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल, वो इतने छोटे होते हैं दैट दे कैन नॉट सीन बाय नेकेड आइज, आप अपनी आंखों से, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो। यू नीड माइक्रोस्कोप फॉर दैट। आपको इतने छोटे होते हैं कि आपको फंगी बैक्टीरिया नजर ही नहीं आएंगे अगर आप ऐसे देखोगे, आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप की ही जरूरत पड़ेगी। कोई डाउट यहां तक? ओके सो गाइज, अगर कोई भी डाउट अगर आपको होता है यू कैन डेफिनेटली आस्क, ठीक है, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। आप कमेंट बॉक्स में भी नीचे अपने डाउट्स को मेंशन करके पूछ सकते हैं। सो आप कह सकते हो ये सभी हैं जिनका एक्चुअल में जो घर होता है वो सॉइल होता है, सॉइल में ही ये सब रहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट गाइज, वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट, व्हाट इज दिस, कैन एनीवन टेल मी क्या है ये? ओहो, ये तो बहुत ही डरावना है। सो दिस इज एक्चुअली, ये आपका अर्थवर्म है। सो एन इंपॉर्टेंट सॉइल ऑर्गेनिज्म इज एन अर्थवर्म। इट इज विजिबल ओनली रेनी सीजन, रेनी सीजन में ही ये ज्यादा दिखते हैं। इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वो उपजाऊपन बढ़ाते हैं। और ये क्यों दिखते हैं रेनी सीजन में, कैन एनीवन टेल मी? बिकॉज रेनी सीजन में जो बारिश का पानी जो होता है वो पूरी जगह को वेट कर देता है, तो इनकी जो बॉडी होती है स्किनी होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। सो उनके बॉडी जिस तरीके की बनी है तो वो वेट प्लेस पे ना वो इजीली मूव कर पाते हैं, ठीक है। फॉर देम इट इज इजियर टू मूव, दैट्स व्हाई। So we can say this like an important soil organism जो होता है that is your earthworm, और ये जो है सिर्फ रेनी सीजन में ही विजिबल होते हैं। इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी का मतलब क्या? उपजाऊपन। लाइक अगर आप देखेंगे तो सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है, सॉइल की फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊपन, वो कितना उसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट है। वो धीरे धीरे, सपोज करो अगर मैं, मेरे पास ये अन अकेडमी की टी शर्ट है गाइस, मैं इस अन अकेडमी को टी शर्ट को दिन रात हर रोज पहनती रहूं, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू डेज व्हाट आई विल सी, और मैं क्या ऑब्जर्व करूंगी, आफ्टर सम डेज आई विल ऑब्जर्व कि धीरे धीरे फेड होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वैसे ही बार बार यूज कर रही हूँ। सिमिलरली एक जमीन है, वहां पे आप एक बार क्रॉप्स उगा रहे हो, दो बार, लेकिन अगर बार बार अगर एक ही प्लेस पे क्रॉप्स उगाए जाएंगे तो होगा क्या? क्रॉप्स को बार बार एक ही जगह पे ग्रो करने से उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो हमारा जो मेन काम है उसकी फर्टिलिटी को भी वापस लेके आना है, सॉइल की फर्टिलिटी को भी वापस लाना है। वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल क्या है, ये जो अर्थवर्म हो गया ये एक्चुअल में हेल्प करता है उस चीज में, ठीक है। वो और उपजाऊपन को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर इन सब के लिए, विच प्रोवाइड अस विद फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज अगर आप जो कॉटन क्लोथ पहनते हो, आप वुलन क्लोथ पहनते हो, या फिर आप जूट के बैग्स यूज करते हो, तो अगर आप वुलन की बात करें तो वुलन आपको एनिमल से मिलता है। और एनिमल किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी लाइफ का मेन पार्ट है प्लांट। अब अगर मैंने आपको वूल बोला तो आप बोलोगे वूल तो हमें नहीं मिलता प्लांट से, वूल नहीं मिलता, बट वूल जिससे मिलता है वो तो डिपेंड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के लिए फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्लांट को सप्लाई करता है। देयरफॉर वी कैन से, इसीलिए हम कह सकते हैं दैट सॉइल इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये जो है हमारे लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम अपने अपने लाइफ से अलग बिल्कुल हटा ही नहीं सकते। अदरवाइज हम फिर जिंदा रहेंगे ही नहीं, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो काफी ज्यादा आप कह सकते हो काफी जगहों पे यूज होता है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर वेदरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय वेदरिंग गाइस? वेदरिंग का मतलब क्या होता है? क्या कोई बता सकता है मुझे? आपको बस वेदरिंग का जो मेन मतलब याद करना ना, वो ये है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। वेदरिंग का कनेक्शन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल से, आपको ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, आपको ये लर्न करना है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच द ह्यूज रॉक्स, जो बड़े बड़े चट्टाने हैं गाइस, व्हेन दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ सन हीट,
सन के हीट से, विंड से, रेन से, फ्लोइंग वाटर से, इन सब से, उसको हम वेदरिंग कहते हैं। होता क्या है, सॉइल कैसे बनता है, जो बड़ी बड़ी चट्टाने होती है, रॉक्स होती है गाइस, ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टाने होती है, वो होता क्या है, बारिश का पानी आता है तो वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। जब ठंड लगती है किसी को, हम क्या सिकुड़ जाते हैं, पानी से सिकुड़ जाता है। जब आपका गर्मी लगती है, आप ऐसे फैल जाते हो, ठीक है। तो जैसे ही धूप आएगी तो वो चट्टाने फैल जाएंगी, तो पहले सिकुड़ी हुई थी, अब फैल जाएंगी। तो जब ऐसा करते हो आप, किसी भी छोटा सा क्लोथ है, अगर एक बच्चे का क्लोथ है, उसमें अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, क्या होगा, फट जाएगा। यहाँ पे भी वही होता है, पहले वो सिकुड़ा हुआ है रॉक्स, एंड देन वो अचानक से एक्सपैंड हुआ। जब वो अचानक से एक्सपैंड हुआ गाइस, तो उसमें क्लीवेजेस आने शुरू हो गए, उसमें दरारें आनी शुरू हो गई, ठीक है। आपके एक्चुअल में क्या था, बड़े बड़े पीसेस थे रॉक्स के, लेकिन क्या हुआ, बारिश से, रेन से, बारिश के पानी से ये श्रिंक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब इसमें सन की रेस पड़ी, सन रेज आई, तो ये एक्सपैंड कर गया, ठीक है। तो कभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पानी से और फिर एक्सपैंड, तो ये एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें ये क्या होता है, उसमें क्लिवेजेस आ जाते हैं, यही चीज प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। पानी से फिर वही चीज होती है, फ्लोइंग वाटर से, तो वो सिकुड़ती है और फिर एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रोसेस जब कंटिन्यूएशन में चलता है ना, तो उनमें क्लीवेजेस आ जाती है, दरारें आ जाती है। और वही जो दरारें हैं गाइस, वही दरारें धीरे 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 इतने फाइन पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और फिर उससे जो है वही फिर सॉइल का रूप ले लेते हैं। आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा, वाह, अरे ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही वो है, नहीं। सॉइल फॉर्मेशन में गाइस बहुत ईयर्स लग जाते हैं। डोंट इवन थिंक कि 1-2 साल, 5 साल, 10 साल में सॉइल फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत टाइम लगता है सॉइल फॉर्म होने में, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? सो वेदरिंग क्या है, वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बड़े बड़े रॉक के पार्टिकल्स होते हैं वो टूट जाते हैं इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ सन्स हीट, विंड, रेन, फ्लोइंग वाटर एटसेट्रा। इसको हम वेदरिंग कहते हैं। इट्स बेसिकली आप सॉइल फॉर्मेशन से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन जो है वो इसी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, अन अकेडमी में एक बहुत ही अच्छी चीज इंट्रोड्यूस हुई है, आस्क अ डाउट। मेरे को लगता है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आपको एक यहाँ जब आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आस्क डाउट मिलेगा। आस्क डाउट पे जब आप क्लिक करोगे, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। सपोज इट इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, एंड if I talk about the science or math subject, so if you are not getting anything, so you have to click that क्वेश्चन, ओके, आपको क्लिक करना है उसका, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, यू हैव टू क्रॉप इट एंड यू हैव टू पेस्ट इट हियर। When you will paste it here within half an hour, sorry, within 3 hours, guys, you will get the solution. आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा 3 घंटे के अंदर, वो भी वीडियो फॉर्म में। सो आई थिंक काफी ज्यादा बेनिफिशियल और काफी इंटरेस्टिंग है, डेफिनेटली यू शुड ट्राई इट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गाइस, नेक्स्ट है हमारा सॉइल प्रोफाइल। अगर मैं सॉइल प्रोफाइल की बात करूं, ठीक है, सो सॉइल प्रोफाइल की अगर मैं बात करती हूं, तो आपका कह सकते हैं सॉइल बेसिकली अलग अलग लेयर्स को मिला के बना है, ठीक है। हॉरिजन्स ऑफ सॉइल जिसे कहते हैं, ये वर्टिकल सेक्शन में डिवाइडेड है अलग अलग लेयर्स में, ठीक है। तो जब हम इसे करेंगे तो ये सारे लेयर्स में डिवाइडेड है। ह्यूमस हो गया सबसे टॉप मोस्ट, उसके बाद वाटर, क्ले, सैंडी, ग्रेवल, स्टोन्स, ये सारे जो नीचे के हैं बहुत ही बड़े बड़े पीसेस होते हैं। ग्रेवल के भी पीसेस बड़े होते हैं, सैंड के उससे थोड़े छोटे, क्ले के तो बहुत ही छोटे, ठीक है। सो अगर हम ह्यूमस की बात करें, ह्यूमस जो है डिकेइंग मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है डार्क ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है गाइस, ठीक है। सो डार्क ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस होता है सॉइल के टॉप मोस्ट लेयर में, सपोज करो कि ये अगर आपका, ये आपका सॉइल है, ठीक है। तो सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर है ना, ये वाला लेयर, यहाँ पे आपका ह्यूमस होता है ज्यादा। ह्यूमस जो है वो डार्क ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। मरे हुए जितने भी जीव जंतु है, सपोज करो प्लांट मर गया, कोई डेड प्लांट मुरझा गया, या फिर कोई भी एनिमल किसी वजह से मर गया, वो सब कहीं ना कहीं सॉइल में मिक्स हो जाता है, क्योंकि सॉइल के टॉप मोस्ट लेयर जो होता है, टॉप मोस्ट लेयर में ही प्रेजेंट होता है। सो सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर है,
टॉप मोस्ट लेयर है, इसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये आपके जितने भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनको ऊपर एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं। वो एंजाइम क्या करता है, उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है और फिर वो सॉइल जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है ह्यूमस जो है सबसे ज्यादा आपका टॉपमोस्ट लेयर में प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहीं पे जितने भी डेड प्लांट एनिमल्स हैं सब वहीं पे आके वहीं मिलते हैं। कोई यहां तक कोई डाउट, यहां तक क्लियर है आप सबको? कोई डाउट यहां तक गाइस? If you have any doubt, you can definitely you can ask. Okay. Okay, guys. Now I am continuing with my things. नेक्स्ट इज योर ह्यूमस। पता चल गया डार्क ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है, इसी में प्लांट्स बहुत क्रॉप्स प्लांट्स जो भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, डार्क ब्राउन कलर का सब्सटेंस। यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमस सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट लेयर में होता है, जो उसके नेक्स्ट वाला जो लेयर है उसमें बहुत ही कम होता है, और उसके बाद तो वो होता ही नहीं है। वेदरिंग मैंने आपको बता दिया था। सॉइल जो सॉइल फॉर्मेशन जो सॉइल इज फॉर्म, ठीक है, सॉइल जो है वो रॉक से बनता है। रॉक्स जब छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है तो उसे हम वो सॉइल फॉर्म करता है, और उसी प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। कोई डाउट यहां तक? हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज गाइस, इफ वी टॉक अबाउट द लाइक, अगर हम लेयर्स की बात करें तो पेरेंट रॉक क्या होता है? द नेचर ऑफ सॉइल दैट इज इट्स टेक्सचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म। द रॉक इज ऑफन कॉल्ड एज पेरेंट रॉक। क्या होता है? क्योंकि एक्चुअल में जो सॉइल फॉर्म हो रहा है वो आपका रॉक से ही होता है। ठीक है, सो जो रॉक इज, इसे पेरेंट रॉक भी कहा जाता है। अभी अगर आप देखोगे पेरेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि धीरे 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 इसको काफी सॉइल फॉर्मेशन में बहुत बहुत साल लग जाते हैं। लेयर्स की बात करेंगे सॉइल की तो अलग अलग ओरिजिन होते हैं, ओ ए बी सी। तो ए की बात करें सो वो आपका दिस इज द लेयर, ऑल्सो इसे टॉप सॉइल भी कहते हैं, तो ए को हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। देन सब सॉइल होता है सेकंड वाला। सो टॉप सॉइल जो है विजिबल होता है, हम सबको हम देख सकते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में ह्यूमस होता है। एंड मिनरल्स विच मेक्स इट डार्क इन कलर, जिसको एक्चुअल में डार्क कलर प्रोवाइड करता है, ये हमारा होता है फर्स्ट जो टॉप मोस्ट ऑरिजिन, जो फर्स्ट लेयर होता है वो। ठीक है, द सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। इसमें सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट लेयर में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ह्यूमस। आई टोल्ड यू ह्यूमस कैसे बनता है, जितने भी मरे हुए जीव जंतु है सब इसमें जाके मिक्स हो जाते हैं, और ये काफी सारे कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का घर भी है, तो वो इसकी हेल्प करते हैं इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने में, उपजाऊपन को। टॉप टॉप सॉइल हैज अ सॉफ्ट टेक्सचर, टॉप सॉइल का जो टेक्सचर होता है बहुत सॉफ्ट होता है, और वो वाटर को काफी टाइम तक रिटेन कर सकता है। दैट इज वाई प्लांट रूट्स ग्रो इन द टॉप मोस्ट, इसलिए टॉप मोस्ट रीजन में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? कोई डाउट यहां तक? ओके, now next is the top soil is home to many living organisms that I have told you, insects, worm, beetles, rodent, moles, ये इन सबका घर है, और ये बहुत ही तरीके से हेल्प करते हैं उनके उपजाऊपन को बढ़ाने में। अगर हम सेकंड बी ओरिजिन मिडिल लेयर इसे कहते हैं, इट इज नेक्स्ट लेयर, इसे हम सब सॉइल भी कहते हैं। लुक एट हियर, ये लिखा भी है सब सॉइल। तो सब सॉइल जो है इसमें ह्यूमस जो है बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम ह्यूमस होता है। द मिनरल्स आर फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटीज, इस लेयर में मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। दिस लेयर हैज अ हार्ड टेक्सचर, उसका जो टेक्सचर होता है थोड़ा हार्ड होगा, कलर लाइट होगा, और मोर कॉम्पैक्ट, ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा। तो टॉप मोस्ट लेयर है वो लूज सॉइल होगा, आप उसको ऐसे से फिंगर से करोगे ना तो लूज हो जाएगा, लेकिन उसके नेक्स्ट वाला जो सब सॉइल का वो आपस में जकड़े होते हैं, वो उस सॉइल को अगर आप हिलाने की ऐसे से हाथ से करने की कोशिश करोगे ना, जकड़े होते हैं, मतलब बिल्कुल आपस में कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, सी ओरिजिन जो है नेक्स्ट इज योर थर्ड लेयर, इसे हम डेफिनेटली पेरेंट रॉक भी कहते हैं। ठीक है, पेरेंट जो कि आपका थर्ड लेयर होता है। ठीक है, ये जो है दीज आर पार्शली वेदर्ड, पार्शली वेदर्ड का मतलब होता है पेरेंट जो रॉक है इसमें आप कह सकते हो कि बड़े बड़े रॉक्स के जो पीसेस होते हैं वो धीरे 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 टूटते जाते हैं फाइन पार्टिकल्स में, तो वो प्रोसेस में है।
ये भी प्रोसेस में धीरे धीरे, क्योंकि काफी टाइम लगता है ना सॉइल फॉर्मेशन में, तो ये जो है धीरे धीरे उस फॉर्म में जाता है। और सबसे नीचे होता है बेड रॉक। बेड रॉक तो आप लगा लो कि इसमें इतने बड़े बड़े चट्टान के पीसेस मिलते हैं। ये वेदर्ड नहीं होता और एक्सपोज टू एनी विंड और वाटर। ठीक है, बेड रॉक कैन नॉट बी डग। वो तो अगर आप उसे खोदने की कोशिश करोगे तो आप लगा लो कि स्ट्रेट टूट जाएगा, पर वो नहीं होगा। इट इज वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड होता है, बड़े बड़े पीसेस होते हैं ना, तो यहाँ तो प्लांट ग्रो हो ही नहीं सकता। पेरेंट रॉक भी वेदर्ड है, वेदरिंग प्रोसेस चल रहा है वहां पे, धीरे 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 पीसेस में टूट रहा है, पर वहां पे भी पेरेंट रॉक में भी पीसेस हैं उसमें। सब सॉइल जो है वो जकड़े होते हैं, तो वो हल्का फुल्का अगर रूट्स अगर सब सॉइल तक पहुंच जाए तो भी प्लांट ग्रो कर जाएगा, लेकिन उसके नीचे नहीं। सिर्फ टॉप सॉइल से सब सॉइल तक ही आना चाहिए प्लांट्स के रूट्स को। इज दिस क्लियर? सो टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट रॉक एंड बेड रॉक। कोई डाउट यहां तक? ये 4 लेयर्स हो गई हैं आपकी। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं कि सॉइल कैसे फॉर्म होता है, सो आपको मैंने बता दिया सॉइल फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, सेम वही चीज है। लाइक जो बड़ी बड़ी चट्टाने होती है, बड़ी बड़ी रॉक और रॉक्स के पीसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, उस पे कंटिन्यूसली धूप आती है, बारिश का पानी या फिर नदी के पानी के साथ वो बहता चला जाता है, उसमें फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होता है, और फिर उन्हीं उन्हीं से उसमें काफी सारी दरारें आ जाती हैं, और आप कह सकते हो 100 ईयर्स लगते हैं। इतने आसानी से नहीं होते, 100 ईयर्स लगते हैं गाइस। द फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, द सॉइल इज, जो फर्स्ट आप कह सकते हो स्टेज होता है, उसमें सॉइल नॉन पोरस नेचर का होता है। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट होता है, एयर वाटर जो होता है उन पोर्स में मतलब आराम से इजीली जा पाता है एयर वाटर। ठीक है, उनमें काफी ज्यादा पोर्स होते हैं। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, अगर मैं सॉइल की कॉम्पोजिशन की बात करूं, तो सॉइल जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट से बना है। 5% ऑर्गेनिक मैटर है, 45% मिनरल्स, 20 to 30% डिफरेंट गैसेस, 20 to 30% वाटर है। इसीलिए सॉइल को हम हेट्रोजीनियस बॉडी कहते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 सब्सटेंसेस। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करके अगर कोई चीज बनती है ना, तो दैट इज योर हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो आप देख सकते हो 5% ऑर्गेनिक मैटर है, 45% मिनरल्स है, 20 to 30% आपका डिफरेंट गैसेस है, 20 to 30% वाटर है। तो ये सब जो है ये आपका सॉइल के अंदर इन सब सारे ऑर्गेनिक ये सारे कंपोनेंट्स है। सो गाइज आपके एग्जाम में बकायदा पूछा जाता है कि आपके सॉइल के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, यू हैव टू राइट इट। आपको ये ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वाटर, गैसेस, इन सब के बारे में बताना होगा। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ लुक एट हियर नेक्स्ट। अगर मैं सॉइल की कॉम्पोजिशन की बात करूं, ठीक है, सो अगर हम साइज के बेसिस पे देखें तो सॉइल इज मेनली मेड अप ऑफ डिफरेंट साइज्ड रॉक पार्टिकल्स। अलग अलग साइज के होते हैं। ठीक है, एंड ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है, मेड अप ऑफ डिफरेंट साइज्ड रॉक्स, पार्टिकल्स एंड ह्यूमस सब प्रेजेंट होता है उसमें। ठीक है, सॉइल इज मेड अप ऑफ 6 कंपोनेंट्स, टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं। रॉक पार्टिकल्स, मिनरल्स, ह्यूमस, एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज इसको लर्न कर लो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल कौन कौन से होते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल जो होते हैं, रॉक पार्टिकल्स, मिनरल्स, ह्यूमस, एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, 6 के 6 नाम आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, इन्हीं से मिलके आपका सॉइल फॉर्म होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस, अगर हम साइजेस के बेसिस पे देखा जाए तो रॉक पार्टिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। सो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम रॉक पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि रॉक पार्टिकल्स जो है बेसिकली जो है 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस की बेसिस पे। कोई डाउट यहां तक? ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा हो। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ रॉक पार्टिकल्स गाइस, अगर हम रॉक पार्टिकल्स के साइजेस के बारे में बात करें तो इस बेसिस पे 4 टाइप के होते हैं, क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल। ठीक है, तो सबसे छोटा होता है ना जिसमें पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, वो आपका क्ले होता है। क्ले में पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत ही थिन, चिकनी मिट्टी जो आपने देखा होगा। ठीक है, क्ले ऐसा दिखता है।
रॉक पार्टिकल्स इन द सॉइल विच आर लिटिल लार्जर, जो क्ले से थोड़ा सा ज्यादा होता है वो आपका सिल्ट होता है, ठीक है। रॉक पार्टिकल जिनका साइज सिल्ट से थोड़ा बड़ा होता है वो सैंड होता है, और जिनका साइज सैंड से भी बड़ा होता है वो ग्रेवल होता है। तो आपको एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट करना है, सबसे पहले क्ले, क्ले के बाद सिल्ट, क्ले से बड़ा साइज सैंड, सिल्ट से बड़ा साइज ग्रेवल, सैंड से बड़ा साइज, उससे जस्ट पहले वाले का नाम लेके आपको करना है ऐसे। तो याद रखना, रॉक रॉक पार्टिकल्स जो देखो क्ले से बड़ा है, इसमें सिल्ट से बड़ा है, और इसमें आपका सैंड से बड़ा। विदाउट ओके, नाउ वी कैन डिफाइन सॉइल एज अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। तो हम सॉइल को बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो है मिक्सचर है आपका, रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस का मिक्सचर है। सो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स और टेक्सचर और पार्टिकल्स के बेसिस पे भी हम इसको डिवाइड करते हैं सॉइल को, जो कि आपका सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लूमी सॉइल, 3 टाइप्स ऑफ सॉइल आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड टेक्सचर। कैसा टेक्सचर है, कैसा छूने में कैसा लगता है। सैंडी सॉइल की बात करें, उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, लार्ज स्पेस भी होता है उसमें। तो इसमें जो है गाइस, स्पेस जो है वो आपका एयर ले लेता है, क्योंकि मतलब ये बिल्कुल, रेत को आपने देखा होगा कैसे खुले हुए होते हैं, मतलब आप उसे मुट्ठी में लेके आप ऐसे करोगे ना तो आपको चारों तरफ रेत ही रेत नजर आएगा, ठीक है। सो आपका जो सैंडी सॉइल है, ठीक है, ये वेल एरेटेड सॉइल है। वेल एरेटेड सॉइल का मतलब मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में एयर इसके अंदर जा सकता है, ठीक है। और इसमें अगर आप वाटर डालोगे ना तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर, ठीक है। वो होल्ड करके नहीं रखता है सैंडी सॉइल, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसमें आप प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ लार्ज स्पेस की वजह से वाटर कैन इजीली पेंट्रेट थ्रू द पार्टिकल्स। इसमें पार्टिकल्स के अंदर तक, पार्टिकल्स तक जो वाटर है वो इजीली पेंट्रेट कर पाता है। सैंडी सॉइल जो होता है हाउएवर कैन नॉट होल्ड वाटर, सैंडी सॉइल कभी भी वाटर को होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। सैंडी सॉइल कभी भी वाटर को होल्ड नहीं कर पाता है। कोई डाउट यहां तक? ओके, कोई डाउट नहीं है ना गाइस? तो हम, मैंने अभी किसकी बात की, सैंडी सॉइल की। तो सैंडी सॉइल में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, वाटर बहुत एब्जॉर्ब होता है, इजीली अंदर तक जाता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है सैंड वाटर को, ठीक है। इसीलिए उसमें कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा ना, पानी डालेंगे वो तो पूरा सोख ले लेगा, फिर प्लांट को पानी कहाँ से मिलेगा, ठीक है। Hence sandy soil are light aerated, ये लाइट एरेटेड होता है, ड्राई इन नेचर, सूखा होता है। सैंडी सॉइल लैक मच न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी कम होते हैं। हेंस डू नॉट सपोर्ट द डाइवर्स ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट के ग्रोथ में ये ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, इसमें आप प्लांट्स को नहीं ग्रो कर पाओगे, ठीक है। उसके लिए ना थोड़ा वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्ले सॉइल। आपने देखा होगा क्ले, चिकनी मिट्टी से आजकल बच्चों के लिए भी अलग अलग डिफरेंट टाइप की गेम्स होते हैं, ठीक है। आप अलग अलग शेप्स बनाओ, और स्कूल में भी आपने देखा होगा कि आपको काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं इसके क्ले सॉइल को यूज करके, जो आप करते हो। इट कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स, इसमें पार्टिकल्स का साइज जो होता है बहुत फाइन होता है, विच हैव लेस स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस कम होता है, बहुत ही आपस में जुड़े होते हैं, काफी क्लोज होते हैं। देर इज नो नॉट मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, एंड क्ले सॉइल्स आर नॉट वेल एरेटेड लाइक सैंडी सॉइल। इसीलिए सैंडी सॉइल की तरह ये वेल एरेटेड नहीं है, इसमें एयर नहीं है, क्योंकि एयर के स्पेस तो चाहिए ना जहां पे एयर जा सके, स्पेस नहीं होता क्योंकि पार्टिकल्स क्लोज होते हैं इसमें, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे टाइनी गैप होता है बस इसके बीच में, ठीक है। दे आर एबल टू होल्ड वाटर, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। सैंडी सॉइल की, सैंड से ही तो आप अलग अलग बर्तन भी बनाते हो, आपने देखा ही होगा, तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इसके से बर्तन बनाए जाते हैं। अगर आप उसमें पानी भी भर दोगे तो भी वो नहीं जाएगा, वो होल्ड करके रखता है पानी को, ठीक है। इसलिए क्लेई सॉइल जो है, जिस भी तरीके के फसल को, क्रॉप्स को ज्यादा पानी की जरूरत है तो डेफिनेटली उसको क्लेई सॉइल का इस्तेमाल करना चाहिए। लोमी सॉइल जो है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिमिलर, मतलब सिमिलर अमाउंट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स इन देम। तो लोमी सॉइल जो है बेसिकली मिक्सचर होता है ये आपका क्लेई सिल्ट सॉइल का, क्लेई सैंडी एंड सिल्ट, इन तीनों का मिक्सचर होता है। सैंडी सैंड भी होता है इसमें, क्ले भी होता है और सिल्ट भी,
तीनों को मिला के जो बना है लोमी सॉइल। इसलिए गाइस आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्ट एग्रीकल्चर के लिए कौन सा सॉइल है, सो यू हैव टू राइट क्ले लोमी सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। रीजन इज द मिक्सचर ऑफ सिल्ट, आपका हो गया सैंड, एंड आपका क्या हो गया नेक्स्ट क्या है, सिल्ट सैंड एंड क्ले, इसीलिए बेस्ट माना जाता है। ठीक है, काफी अच्छे, ये प्लांट्स को ग्रोथ को काफी ज्यादा हेल्प करता है। दे आर ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल सॉइल भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये फर्टिलिटी में हेल्प करता है, उपजाऊपन में। अगर उपजाऊ नहीं रहेगी जमीन, आप कभी भी किसी भी क्रॉप को ग्रो नहीं कर सकते। दे कंटेन गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड हैव अ हाई पीएच लेवल। इसका पीएच लेवल बहुत ज्यादा होता है, कैल्शियम की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है। इज दिस क्लियर, कोई डाउट? ओके। सिल्ट सॉइल जो होता है, द सिल्ट सॉइल पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन दैट ऑफ सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल से सिल्ट सॉइल का जो पार्टिकल का साइज है वो कम होता है, लेकिन क्ले से बड़ा होता है। ये सैंड और क्ले के बीच में लाई करता है सिल्ट सॉइल। ये भी वाटर को होल्ड कर पाता है पर ज्यादा नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स फाइन क्वालिटी। इसके फाइन क्वालिटी की वजह से करता है। दे आर जनरली फाउंड नियर द वाटर बॉडीज, रिवर बैंक्स, लेक्स में, वहां पे मिलता है सिल्ट सॉइल। ठीक है, तो कुछ ही हद तक ये वाटर को होल्ड कर पाता है, ज्यादा नहीं कर पाता। कोई डाउट यहाँ तक? दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होता है, हाईली फर्टाइल, बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट माना जाता है सिल्ट को। कौन से एरिया में? ये बेसिकली नदियों के, नदी और समुद्र, इन सब के आसपास पाया जाता है। देर ऑफन मिक्स्ड विद अदर सॉइल, बाकी सॉइल के साथ भी इसे मिक्स मिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा अच्छा है। अगर नेक्स्ट इज योर क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल में डिफरेंस अगर मैं देखूं, तो क्लेई सॉइल जो होता है मेनली कंटेन स्मॉल साइज्ड क्ले पार्टिकल्स। इसमें क्ले पार्टिकल्स का जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है। सैंडी सॉइल में लार्ज होता है, इसमें स्मॉल होता है। स्पेस इसमें जो होता है बहुत ही कम होता है। इसमें स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच में वो ज्यादा है। इट इज लेस एरेटेड, इसमें एयर के लिए जगह नहीं, क्योंकि कॉम्पैक्ट होता है, सारे पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं। सैंडी सॉइल जो है इट्स वेल एरेटेड, इनके बीच में काफी स्पेस मिल जाएगा। इट इज वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले का बहुत बहुत अच्छी होती है, जबकि ये पुअर है इसमें, इस चीज में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर। इट कैन होल्ड न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स को भी होल्ड कर सकता है, ये न्यूट्रिएंट को होल्ड नहीं कर सकता। इट हैज लीस्ट परकुलेशन रेट, लेकिन इसका परकुलेशन रेट जो है ना वो सबसे कम है। परकुलेशन रेट का मतलब क्या है गाइस? एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो इसकी बहुत, क्ले सॉइल की बहुत कम है। ये होल्ड करके रखता है पानी को, एब्जॉर्ब बहुत कम करता है। लेकिन सैंडी सॉइल का परकुलेशन रेट काफी ज्यादा अच्छा है। क्ले सॉइल की बात करो, इट इज हैवी एंड मॉइस्ट इन नेचर, वो हैवी भी है और नेचर में उसको देखा जाए तो मॉइस्ट नेचर का भी है। और सैंडी सॉइल की बात करें, इट इज लाइट ड्राई इन नेचर, वो लाइट हल्का है और ड्राई सूखा है नेचर सैंडी सॉइल। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। कोई डाउट ना नहीं होगा आप सबको ये वाला आज का सेशन समझ आ गया होगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर आई हैव टॉट यू। ओके, सो गाइज आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सॉइल क्या होता है। ठीक है, देन हमने पढ़ा वेदरिंग। आई होप कि आपको समझ समझ आ गया हो, कोई डाउट तो नहीं है किसी का? ठीक है, ये सैंडी सॉइल सब कुछ समझ आ गया है? कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल यू आर फ्री टू आस्क गाइस। ओके, सो गाइज आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, तो पूरा सेशन में मैंने आप लोगों को क्या क्या चीजें समझाई है आपको याद रखना है। ओके, ओके गाइस, सो आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग हियर, सबको समझ आ रहा होगा सब कुछ। ठीक है, ओके।
कोई डाउट? Sorry guys, by mistake it happened. Just wait. Okay, guys. Okay, guys. So don't worry about that. Yes. So I hope you all have understood everything. Just give me, guys, 1 minute here. Okay, guys. Okay, okay, okay. I think okay. Then sorry for this thing, guys. Like I have been trying from last 5 minutes for that.
कि जो मेरा पीपीटी के जो लास्ट के 2 स्लाइड्स थे वो मिल जाए, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस गाइस इट्स नॉट ओपनिंग। आई थिंक कुछ एरर शो कर रहा है। ठीक है, सो इट्स ओके गाइस, एब्सोल्युटली फाइन। आई होप यू एंजॉयड माय सेशन टुडे। ठीक है, वैसे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बट आई हैव टू शो यू लाइक कौन कौन से टॉपिक्स आज हमने किया था, दैट आई वाज शोइंग यू। बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आई हैव डन विद द सेशन टुडे। सो हमने सॉइल पढ़ा आज। हमने सॉइल के बाद सॉइल कैसे फॉर्म होता है उसे वेदरिंग कहते हैं, दैट वी हैव डन टुडे। देन हमने लेयर्स ऑफ सॉइल पढ़ा है। लेयर्स ऑफ सॉइल के बाद हमने क्या पढ़ा है, व्हाट वी हैव डन नेक्स्ट। ओके, सो व्हाट वी हैव डन नेक्स्ट। ओके, सो हमने उसके बाद आज क्या क्या पढ़ा है, वी हैव डन सॉइल क्या होता है हमने, देन हमने पढ़ा वेदरिंग क्या होता है। ठीक है, देन वेदरिंग के बाद हमने पढ़ा गाइस की देन वी हैव डन, यस, बिल्कुल सही कहा आपने, लेयर्स पढ़ा हमने, सॉइल की लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा है। देन हमने टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ा है हमने, कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स रॉक्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, वो सब हमने पढ़ा। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी डाउट होगा तो हम जरूर आगे इसके बारे में you can definitely ask, आप पूछ सकते हो। my code is SWEMA। don't forget to like, subscribe and share guys। ज्यादा से ज्यादा लोगों को share, subscribe and like करना है। thank you so much guys, I hope you all have understood each and everything। okay, yeah, what I have written here, it's I think because of my it's not showing here, so I have to write it here like उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने टाइप्स पढ़ा है, टाइप्स ऑफ सॉइल। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डन टुडे। ओके गाइस, सो इट्स ओके। आज का सेशन भी मजेदार था। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन। बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू।